Thank you so much, Prabhu. भागवतम का 10वां स्कंद से 19th चैप्टर डिवोर इन द फॉरेस्ट फायर एक सुंदर सा पास टाइम है, छोटा सा है लेकिन बहुत इट्स वेरी इंफॉर्मेटिव इंस्ट्रक्टिव पास टाइम. इसको हम डिस्कस करने का प्रयास करेंगे. Anybody would like to volunteer to read this chapter? It's 1, 2, hardly 2 paragraphs. कोई पढ़ना चाहेगा? Avan Prabhu, would you like to try, Prabhu? Yes, Prabhuji. Good. Devouring the forest fire. While Krishna and Balram and their friends were engaged in the pastimes described above, the cows, being unobserved, began to wander off on their own, entering farther and farther into the deepest part of the forest, allured by fresh grasses. The goats, cows, and buffalo traveled from one forest to another and entered the forest known as uh, Ishikavtavi. This forest was full of green grass, and therefore they were allured. But when they entered, they saw that there was a forest fire, and then they began to cry. On the other side, Balram and Krishna, along with their friends, could not find their animals, and they became very much aggrieved. They began to trace the cows by following their footprints, as well as the path of eaten grass. All of the boys were fearing that their very means of livelihood, the cows, were now lost. When searching out the cows in the forest, they themselves became very tired and thirsty. Soon, however, they heard the crying of their cows. Krishna began to call the cows by their respective names with great noise. Upon hearing Krishna calling, the cows immediately replied with joy. But by this time, the forest fire had surrounded all of them, and the situation appeared to be very fearful. The flames increased as the wind blew very quickly, and it appeared that everything movable and immovable would be devoured. All the cows and the boys became very frightened, and they looked toward Balram and Krishna the way a dying man looks at the picture of the Supreme Personality of Godhead. They said, Dear Krishna, you and Balram are very powerful. We are now burning from the heat of this blazing fire. Let us take the shelter of your lotus feet. We know you can protect us from this great danger. Our dear friend Krishna, we are your intimate friends. It is not right that we should suffer in this way. We are all completely dependent on you, and you are the knower of all religious life. We do not know anyone except you. The personality of God had heard the appealing voice of his friends, and casting a pleasing glance over them, he began to answer. By speaking through his eyes, he impressed upon his friends that there was no cause for fear, and he assured them, "Don't worry." Then Krishna, the supreme mystic, the powerful personality of Godhead, immediately swallowed up all the flames of the fire. The cows and the boys were thus saved from imminent danger. Out of fear, the boys were almost unconscious. But when they regained their consciousness and opened their eyes, they saw that they were again in the Bhandir forest with Krishna, Balram, and the cows. They were astonished to see that they were completely free from the attack of the blazing fire, and that the cows were saved. They secretly thought that Krishna must be not an ordinary boy but some demigod. In the evening, Krishna and Balaram, along with the boys and the cows, returned to Vrindavan, playing their flutes. As they approached the village, all the gopis
became very joyous. Throughout the day, gopis used to think of Krishna while he was in the forest, and in his absence, they were considering one moment to be like 12 years. Thus ends the Bhaktivedanta purport of the 19th chapter, Krishna devouring the forest fire. Thank you so much. Okay. Now let me share this pastime. So ये वो पिक्चर जिस लीला की बात चल रही है, दिस इज द पिक्चर दैट इज बेसिकली रिफ्लेक्टिंग दैट लीला वेरी नाइसली. ठीक है, छोटा सा चैप्टर है, कितना पैराग्राफ है, 2 बड़े पैराग्राफ है, बस उतना ही है, लेकिन एक्चुअली हमारे जीवन का एक बहुत बड़ा लेसन यहाँ पे हम सीख सकते हैं थ्रू दिस पर्टिकुलर पास्ट टाइम, इफ वी लुक एट इट केयरफुली. अल्टीमेटली यहाँ पे देख सकते हैं that there is so much fire, आग है. okay? And इस भौतिक दुनिया में हर एक व्यक्ति कुछ न कुछ अपने हृदय में आग लेके घूमता है, मतलब उसके हृदय में आग लगा हुआ रहता है. अब देखेंगे जब भौतिक व्यक्ति है जो भगवान से जुड़ा हुआ नहीं है, उसके जीवन में सबसे बड़ा आग क्या लगा हुआ है? वो इंद्रिय तृप्ति का आग है. अनगिनत इच्छाओं की वजह से वो हमेशा तपती रहते हैं. कुछ न कुछ, आज ये मैच देखना है, आज बाइक खरीदनी है, वो कपड़े खरीदने हैं, वो लीवाइस के जीन्स खरीदना है, या फिर ये टाइटन की नया वॉच है वो खरीदना है, या फिर एप्पल का वायरलेस ईयरबड्स खरीदने हैं, या फिर सैमसंग का नया नोटपैड आया हुआ है, या फिर शादी हो गई तो सम डिजायर टू हैव योर ओन होम, घर चाहिए, ज्यादा पैसे चाहिए, और बाहर जाने की इच्छा है, देश विदेश जाने घूमने की इच्छा है. तो अलग अलग टाइप के प्रकार के भौतिक इच्छा से आदमी हमेशा वो आग वो तपती रहता है. दैट फायर ऑफ डिजायर्स, द फायर फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन इज देयर. और दूसरी, और वो छोड़ के भी भगवद गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन चतुर्विधा भजन्ते मां. इस दुनिया में पॉपुलेशन ये 7 बिलियन प्लस है, लेकिन इस 7 बिलियन को भगवान, अगर कोई कहेगा 7 बिलियन भी अगर भगवान के पास आते हैं, जितने भी लोग इसमें से भगवान के पास आते हैं, उनको भगवान चार भागों में विभाजित कर, 4 कैटेगरी में भगवान डाल देते हैं. भगवान कहते हैं 4 ही प्रकार के लोग मेरे पास आते हैं, आर्थो, जिज्ञासु, ज्ञानी. आर्थो अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी, 4 प्रकार के लोग मेरे पास आते हैं. आर्थो मतलब ये कुछ न कुछ दुख के कारण लोग भगवान के पास जाते हैं. अर्थार्थी मतलब जो कुछ न कुछ भगवान से मांगने के लिए जाते हैं, खास करके धन मांगने के लिए. तो कितना कृष्णा है, पैसा दीजिए, जमीन दीजिए, सब अर्थ चाहिए उसको, सम ऑपुलेंट थिंग्स, पैसा मांगने के लिए खास कर. आर्थो अर्थार्थी. ज्ञानी और जिज्ञासु. जिज्ञासु मतलब ये जानना चाहता है कि कृष्ण कौन है, ये दुनिया कैसे चल रहा है, मतलब वो सिर्फ जिज्ञासु है बस. इज इंक्विजिटिव टू नो अबाउट. मे बी किसी ने सुना कि अरे ये सब जगह कहते हैं कृष्ण भगवान है, तो वो आता है भगवान को जानने के लिए कि आप है कौन, आपकी सृष्टि ने कैसे बना. ही इज जस्ट इंक्विजिटिव. ज्ञानी इज ये भगवान के बारे में कंप्लीटली जानना चाहते, भगवान के बारे में संपूर्ण तरह से ज्ञान प्राप्त करना चाहता है. और 4 प्रकार के लोग जो भगवान के पास आते हैं, इन चारों को भगवान कहते हैं ये पुण्यशाली आत्मा है. इसके बाद अगला श्लोक भगवान कहते हैं, हे अर्जुन ये 4 प्रकार के लोग पुण्यशाली आत्मा है. तो कह सकता है अरे ऐसे कैसे पुण्यशाली कैसे आत्मा हो गया? अगर हम भगवान के पास जाते हैं ये कहने के लिए भाई हमारे दुख हर लीजिए, आप दुख दूर करो द्वारकानाथ, या फिर भगवान के पास जाएंगे ये मांगने के लिए हमें धन दीजिए,
हमारा बिजनेस दुगना होना चाहिए, हमारे घर घर दीजिए, गाड़ी बंगलो चाहिए। तो ये कैसे पुण्यवान व्यक्ति, इसको कैसे पुण्यवान कह सकते हो? ये तो सेल्फिश डिजायर से भगवान के पास आते हैं। लेकिन भगवान कहते कोई बात नहीं, इनको फिर भी भगवान पुण्यवान गिनते हैं, क्योंकि भगवान कहते हैं ये मेरे पास आए ना मांगने के लिए। ये किसी देवता देवता के पास भी जा सकते हैं, लेकिन मेरे पास आके ये मांग रहे हैं, तो मेरा यश बढ़ाते हैं। इसलिए भगवान को अच्छा लगता है कि चलो, क्योंकि अगर मुझसे जो मांगेंगे और मैं इनकी इच्छा पूरा करूंगा तो यश किनका बढ़ेगा? मेरा बढ़ेगा। भगवान कहते हैं मेरा यश भी बढ़ाते हैं, तो भगवान इनको पुण्यशाली गिनते हैं। ध्रुव महाराज इतनी कड़ी कड़ी तपस्या की है और भगवान ने उनको राज दिया, तो यश किनका बड़ा है? भगवान का ही बड़ा है ना। तो 4 प्रकार के लोग इस दुनिया में जितने भी लोग हैं, 4 प्रकार के लोग ही भगवान के पास जाते हैं, आर्थो, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। लेकिन कलयुग में सबसे ज्यादा अगर कोई जाता तो भगवान आर्थो मतलब पहला कैटेगरी, मतलब कलयुग में लिटरली 4 कैटेगरी क्या है? आर्थो, आर्थो, आर्थो और आर्थो। सब आर्थो वाले, मतलब दुख में भगवान के पास जाने वाले 99% लोग हैं। उसी टाइम भगवान याद आते हैं, उसी टाइम ठाकुर जी याद आते हैं, उसी टाइम गीता भागवत कुछ न कुछ सुनने का मूड रहता है। मतलब ये जो आग है, दुख का आग, ये भी हर एक व्यक्ति अपने जीवन में इच्छाओं की आग से तप्त है या फिर दुख की आग से तप्त है। एक लड़का फोन किया, व्हाट्सएप मैसेज डाला। अभी व्हाट्सएप की वजह से कहां से मैसेज आते हैं और कैसे लोग को मैसेज मिल जाते हैं, पता नहीं कहां से, किस राष्ट्र से इतना बड़ा मैसेज लिख दिए कि प्रभु हम बहुत टेंशन में है, हम नौकरी, एक्चुअली हम इंजीनियरिंग पास किए, लेकिन उसके बाद हम गवर्नमेंट जॉब लेने के लिए हम 3-4 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं, लेकिन पास नहीं हो पा रहे हैं। तो अभी टेंशन है, अभी दिमाग एकदम सटक गया है, क्या करना पता नहीं चल रहा है। कोविड की वजह से और भी नौकरी के कुछ ठिकाना नहीं पड़ रहा है। अभी 26-27 साल को हो गए हैं, घर वाले पूछ रहे क्या करना चाहिए। आई एम वेरी डिप्रेस्ड, डिप्रेशन में, मन पूरा कंट्रोल में नहीं है, मन आउट हो गया, माइंड आउट हो गया, क्या करना चाहिए? आप हमको कुछ सलाह दीजिए। आग लगी हुई है ना, उसके जीवन में तो आग ही लगा हुआ है, क्या करना चाहिए? तप्त है वो आदमी। एक स्त्री ने व्हाट्सएप मैसेज डाला कि अर्जेंटली मुझे कॉल करने, मुंबई से, मुझे बहुत हेल्प चाहिए। फोन उनसे बात किया तो कि मुझे बहुत हेल्प चाहिए, बताइए क्या है। वो कह रहे थे कि एक अजीब सा हमारी बीमारी है। क्या बीमारी है? ये जब खाना देखते हैं तो उनको देख के उल्टी आती है, उसकी वजह से बेचारी खाना खा नहीं सकती है। शी कैन नॉट ईट फूड। मतलब अगर पूरा बना रोटी दाल भात देखी, उसके शरीर में उल्टी जैसा आता, उल्टी जैसा आएगा तो उसको खा कैसे लेंगी वो? अब शारीरिक सिचुएशन एकदम परफेक्ट है, डॉक्टर ने सब टेस्ट करके कहा कि तुम्हारे शरीर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप परफेक्टली फिट हो, हार्डली 25-26 साल की माता जी होगी, लेकिन प्रॉब्लम है। तो कहते मुझे प्रॉब्लम है, अभी ये प्रॉब्लम समझ कैसे करना, सुलझाइए। तो इस तरह हर व्यक्ति कलयुग में भौतिक दुनिया में कुछ न कुछ आग से तप्त ही है। शारीरिक कुछ न कुछ अभी बीमारी हो गई है, ये होने वाली है, सिम्टम्स आ रहे हैं, बुखार आ रहे हैं। बीमारी से शारीरिक रूप से तप्त है, मानसिक लेवल पे तप्त है। और भक्ति में आने के बाद भी अजीब सा चीज है कि इसमें भी हम तपती रहते हैं। यहां पे भक्ति में आग कैसी लगी हुई रहती है। यहां पे डिवोटी देखिए, अभी भाद्र पूर्णिमा चल रहा है, पूरा विश्व में बस सब महाराज, राधानाथ महाराज, परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज, परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज, परम पूज्य भक्ति राघव स्वामी महाराज, परम पूज्य जयप्रताप स्वामी महाराज, देवामृत स्वामी, सब कह रहे हैं कि भाई भद्र पूर्णिमा का कैंपेन चल रहा है। इसके कैंपेन का क्या है? यह है
कि भागवतम जो है भद्र पूर्णिमा आने वाली 2 तारीख सितंबर को जो पूर्णिमा है उसको कहते हैं भद्र मास में जो पूर्णिमा उसको भद्र पूर्णिमा कहते हैं। ये वो पुण्य दिन है जिस दिन सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को भागवत सुनाना बंद कर दिए, मतलब खत्म हो गए थे, इट वाज फिनिश्ड, कंप्लीट हो गए थे 7 दिन। तो राधाष्टमी के दूसरे दिन से सुखदेव गोस्वामी भागवतम बोलना शुरू करते हैं और वो समाप्त होता है भाद्र पूर्णिमा का दिन। और भागवतम पूरा होते होते सुखदेव गोस्वामी एक सुंदर सा बेनेडिक्शन देते हैं, वरदान देते हैं कि यह भाद्र पूर्णिमा का दिन जो है, जो कोई व्यक्ति भागवतम लेगा और किसी व्यक्ति को दान में देगा तो वो व्यक्ति भगवत धाम चला जाएगा। तो इस तरह आग जो है हर एक व्यक्ति के जीवन में कुछ न कुछ लगा हुआ है। इसको सोल्यूशन क्या है? तो सोल्यूशन इस लीला से हम देखते हैं, जैसे लीला छोटा सा स्टोरी है कि कृष्ण बलराम और ग्वाल गोपाल जो है, जो अपनी लीला में एकदम बिजी थे और इतने में क्या हो गए, जितने में गैया थी वो धीरे धीरे वहां से निकल के दूसरे जंगल की ओर चलने लगी। और चलते 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 ऐसे डीप जंगल के अंदर घुस गए, वो अच्छी अच्छी हरी हरी घास देख के वो चले गए और पता चले कि कहीं और एक घने जंगल के अंदर घुस गया और वहां पे जाते जाते और एक जगह पे फंस गए, वहां पे आग लगा हुआ था और ये सब पहुंच गए। उसके बाद तो आग जो है चारों तरह से लगा हुआ था। बाद में ग्वाल बालम देखेगा अरे गैया कहाँ है, वो फिर चिंतित होकर वो भी आने लगे। पता चले आते आते वो देखिए आप पिक्चर में सब लोग फंस चुके हैं और इतने आग में प्यास भी लग रही है। ऑलमोस्ट रूपा जी कहते हैं अचेतन, दे वर अनकॉन्शियस, द गोपास वर अनकॉन्शियस। गाय जो है वो भी भगवान की तरफ देख रहे हैं और गोपी वो भी भगवान की तरफ देते हैं, आप कुछ करिए कृष्ण, आप ही कुछ कर सकते हो। और भगवान फिर क्या करते हैं? भगवान एक चीज कहते हैं भागवत में, भगवान कहते हैं महाबहिष्ट, मतलब आप डरिए मत। ये शब्द भगवान भागवत में बार बार भगवान कहते हैं महाबहिष्ट, मैं हूं, अभय प्रदान कर दूंगा, डरिए मत, महाबहिष्ट, डोंट फियर। आप सिर्फ आंख बंद कर लीजिए 2 मिनट के लिए और डरिए मत। तो जितने भी गोप हैं आंख बंद कर लेते हैं और जब आंख खुलते हैं तो देखते हैं कि पूरा आग जो है, आग है नहीं कुछ और भांडीर वन में वापस आ चुके हैं। उस टाइम पे जब गोप लोग आंख बंद कर लिए थे तो भगवान ने क्या किया? भगवान ने उस आग को पी लेते हैं कंप्लीटली। क्या एक 7 साल का लड़का आग पी सकता है? वो भी कहां पे आग लगी हुई थी? जंगल की आग। साधारण ऐसी छोटा मोटा आग नहीं है, जंगल का आग। आप सोच सकते हो कितना भयंकर आग लगता है। वो कोई भी आदमी उसको बंद नहीं कर पाएगा। हजारों वृक्ष हैं सब और ड्राई लीव्स आर देयर, तो आग इतना तेज से लगता है और हवा भी चलती है जबरदस्त। तो पूरा जंगल, हजारों मील तक जंगल जो है, अपना देश में कम है लेकिन विदेशों में बहुत बड़ी समस्या है। अभी लेटेस्ट जो है, आई थिंक लास्ट ईयर शायद ऑस्ट्रेलिया में जो आग लगा हुआ था, कितने हजारों मील तक इतने जंगल जो थे ये पूरे जल चुके थे। और यही जो है यहाँ पे हमको देखने को मिलता है। तो लेकिन इसको पी कौन सकते हैं? सिर्फ भगवान पी सकते हैं। तो भगवान यह कह रहे हैं भाई अपनी जिंदगी में कुछ न कुछ आग लगी हुई है, भौतिक इच्छा की आग लगी हुई है, या फिर भक्ति में आके, भक्ति में भी कुछ न कुछ भक्ति कर रहे हैं, माला घुमा रहे हैं, भागवत क्लास में आ रहे हैं, लेकिन फिर भी मन में आग लगा हुआ है। शारीरिक रूप से कहीं ना कहीं आग लगा हुआ है, इच्छाओं की आग लगी, कुछ न कुछ। अभी भाद्र पूर्णिमा चल रहा है तो अगर भक्तों के प्रभु जी थोड़ा भागवत का वितरण करिए, सब महाराज कह रहे थे, प्रभु अब नहीं होगा भागवत वितरण, अभी थोड़ा व्यस्त है, हम गौर गृहस्थ में व्यस्त हैं।
कुछ न कुछ काम से, या खास करके यूथ आते हैं हमारे पास, ये पुणे इज ए हॉट बेड फॉर यूथ प्रीचिंग। तो उसको कहोगे 24-25 साल का लड़का, उसको थोड़ा प्रचार करिए, थोड़ा पुस्तक वितरण करिए, कहेगा प्रभु आप थोड़ा व्यस्त है, हम शादी करने के लिए रेडी हो रहे हैं, तो लड़की देखने में इसमें समय जा रहा है, प्रभु जी आप थोड़ा माफ करिए 6-8 महीने तक, उसके बाद हम कर लेंगे। 6-8 महीने को शादी हो जाती है तब ये प्रभु जी शादी तो होगी, चलिए आप और माता जी अच्छे भक्त बनिए, चलो प्रचार करिए, प्रभुपाद जी क्रिश्चियन है, आगे बढ़ाए। तो क्या प्रभु अब भी शादी होगी, थोड़ा हमको श्वास लेने दीजिए, थोड़ा तो हमको फोकस करने दीजिए शादी के ऊपर, इतना दबाव में मत डालिए, थोड़ा रिलैक्स करिए। 1 साल तक उसको छोड़ देंगे, उसके बाद उनको बोले चलिए प्रभु जी आप तो प्रचार शुरू करिए, तो क्या प्रभु जी नाउ वी आर एक्सपेक्टिंग ए चाइल्ड, बच्चा होने वाला है, तो प्रेग्नेंट है माता जी, तो आपको बताइए प्रेगनेंसी में कितनी दुख होती है, शारीरिक दुख रहता है, तो अभी नहीं होगा प्रभु, आप थोड़ा देर रुक जाइए। उसके बाद बच्चा जन्म होगा, तो प्रभु जी बच्चा जन्म हुआ है, अभी दिन को सोता है रात को जगता है, पूरा जिंदगी उल्टा, पूरा स्केड्यूल टाइम टेबल उल्टा सुल्टा हो गया, कब सोता है कब जागता है पता नहीं, हम जी पा रहे हैं वो भी बहुत बड़ी बात है, अब प्रचार तो क्या प्रभु जी हम कुछ नहीं कर पाएंगे। 2 साल ऐसा होने के बाद फिर वो कहेगा प्रभु हम आईटी कंपनी में काम करते हैं, आप मिडिल मैनेजर लेवल तक आ चुके हैं, हमारी नौकरी रहेगी कि नहीं पता नहीं है प्रभु, बहुत आईटी इंडस्ट्री बहुत टेंशन चल रहा है, तो आप प्रभु जी हमको फिर के ऊपर फोकस करने दीजिए। फिर 2 साल छोड़ने के बाद भी पूछेगा प्रभु जी दूसरा बच्चा हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो 2 साल उसमें। इस तरह भक्ति में आने के बावजूद भी, डिवोटी होने के बाद फिर भी हम कुछ न कुछ आग मन में लगा हुआ है, ये करते हैं वो करना है। सबसे ज्यादा डिवोटी पूछते प्रभु जी आध्यात्मिक जीवन और भौतिक जीवन में बैलेंस कैसे करना है, सबसे ज्यादा पूछा हुआ क्वेश्चन है, और सबसे ज्यादा तुरंत गूगल पे ढूंढते हैं हाउ टू बैलेंस स्पिरिचुअल एंड मटेरियल लाइफ, जबकि इम्बैलेंस है नहीं कुछ। ऐसे नहीं कि भक्ति आध्यात्मिक जीवन बहुत तेज से पकड़ चुका है और भौतिक जीवन जो कम चल रहा है, नहीं, बहुत आध्यात्मिक जीवन थोड़ा कर लेते हैं, 16 माला 2 घंटा बस, उसके बाद तो लगता है कि हाय हाय कितना सब हो गया, भौतिक जीवन तो टोटली उल्टा पुल्टा हो गया, इम्बैलेंस हो गया। अभी बैलेंस करो कुछ ना कुछ करके। तुम्हारा लोग कहते हैं जब इम्बैलेंस की कोई कहते हैं प्रभु जी बैलेंस कैसे करना है, तो पहले जिस पूछते प्रभु पहले इम्बैलेंस तो होने दो, जो अभी तो क्या बैलेंस है, कभी भौतिक जीवन पूरा आपको, आप तो भौतिक जीवन सबसे प्रायोरिटी में चल रहा है, आध्यात्मिक जीवन थोड़ा 2 घंटे दे रहे हो ना आध्यात्मिक जीवन के लिए, इम्बैलेंस क्या हो, बाकी 22 घंटे तो भौतिक जीवन के लिए तो दे रहे हो, इम्बैलेंस कहाँ दिख रहा है। अगर 22 घंटा आप आध्यात्मिक जीवन के लिए देते हो और 2 घंटे, तो कह सकते प्रभु जी ये तो इम्बैलेंस है, अभी तो उल्टा है। तो डिवोटी भी मन से पागल होते हैं, अरे प्रभु ये इतना चैंटिंग बहुत कठिन वाले शब्द हो गए, कहाँ 2 घंटा निकल पाएंगे, इसको हमें कैसे सुबह उठना है, कैसे उठ पाएंगे, हम गृहस्थ हैं, लेट सो रहे हैं, घर से हस्बैंड लेट आते हैं, दुकान लेट बंद होता है, खाते आते 10:30 बज जाते हैं, फिर वो सोते सोते 12:30 बज जाते हैं, कैसे हम सुबह उठ पाएंगे। एक छोटा सा उदाहरण है, सिंपल सा उदाहरण, सुबह उठना है बस, लेकिन वो सुबह उठना भी इतना कठिन हो जाता है कि वो भी नहीं कर पाते हैं। अब इस सालों तक यही खींचेंगे, यही कहेंगे कि हम नहीं उठ पा रहे, मतलब 10-15 साल तो ये सुबह उठने के पीछे लग जाता है। एक छोटा सा उदाहरण है, जबकि भौतिक जीवन का एक, आप आध्यात्मिक जीवन का छोटा सा ये है। तो आदमी हमेशा पूछते हैं प्रभु जी सुबह उठने का सीक्रेट क्या है, या फिर कुछ भी। सो इवन डिवोटीज आर स्ट्रगलिंग विद द फायर, भक्तों के जीवन में लगा हुआ है। अभी सबसे बड़ा सवाल यह है इस आग को बुझाएंगे कैसे, कौन बुझाएगा, हम बुझा नहीं सकेंगे, आप सबको एक्सपीरियंस है, क्योंकि सालों के बाद भी भक्त ये ढूंढते हैं कि भाई बैलेंस कैसे करें, बैलेंस कैसे करें। बैलेंस हम कभी कर नहीं पाएंगे क्योंकि इम्बैलेंस है ही नहीं। इम्बैलेंस होता तो कोई बैलेंस कर लेते ना, मानसिक दिमाग का प्रॉब्लम, माइंड का प्रॉब्लम, जो कहता है कि भाई बहुत भक्ति कर रहे हो भाई, इतना टाइम चैंटिंग में लगा दोगे, इतना टाइम इस क्लास वास में लगाओगे, फिर भौतिक जीवन का क्या होगा।
वो भी सोचना चाहिए ना, कैरियर का सोचना चाहिए, घर परिवार का सोचना चाहिए, अपना खुद के कैरियर वो सोचो, नौकरी वहां पे ये सब सोचो, इतना भक्ति में। तो मन जो है कुछ किया बिना ही पहले से कह देता कि अगर अब कुछ भी ज्यादा भी नहीं करते, मन कहता कि नहीं बहुत कुछ हो रहा है, इम्बैलेंस हो रहा है। इसलिए बैलेंस कैन नेवर हैपन। हम बैलेंस इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि इम्बैलेंस है नहीं। Why aren't we able to balance both spiritual? Because there is hardly any imbalance to begin with. It's a concoction of the mind for the most part. For the most part, maybe there are a few cases where it is really a problem, but for the most part, it is just mental concoction that we think there is so much imbalance in our lives. भगवान कहते हैं तुम्हारे जीवन में जितना भी आग है, भले किसी भी प्रकार का आग हो, भगवान कहते हैं मैं वो आग पी सकता हूं, मैं पूरा सक्षम हूं। देखिए भगवान कितना सुंदर तरीके से वहां पे खड़े हैं। करोड़ों रुपए इस तस्वीर के लिए हम दे सकते हैं, कितना सुंदर तस्वीर है। देखिए कमर के ऊपर लेफ्ट हैंड भगवान का, कितने एक हाथी की तरह एकदम भगवान खड़े हैं, फुल्ली कॉन्फिडेंट, और आग को पी रहे भगवान, और हाथ राइट हैंड में, दाएं हाथ में बांसुरी भी है। कितना सुंदर चित्र है। ये आपने नोटिस किया होगा, इस्कॉन के चित्र इतने सुंदर हैं। यही आप इसी लीला के अलग अलग टाइप की तस्वीर ढूंढने के प्रयास करिए, लेकिन अगर कहीं पे भी ऐसा तस्वीर नहीं मिल पाएगा। I don't know. I don't think it will happen. फिर फॉर ईच किसके लिए माता जी? 5 to 6 OTP है, Zoom 1 या Zoom 3 में से क्या यूज कर सकते हैं? मेरा 5 to 6 में 5 बजे खत्म हो जाएगा मेरे माता जी। कैन यूज Zoom 1? तो भगवान क्या कर रहे हैं? आग पी रहे हैं। लेकिन कब हमारे जीवन के आग भगवान पिएंगे? जब हम जो है, अगर भगवान क्या कहते हैं? आंख बंद कर लीजिए। अगर हम भगवान के स्मरण में, इफ यू अब्सॉर्ब आवरसेल्फ इन द रिमेम्बरेंस ऑफ द लॉर्ड, देन कृष्णा विल बेसिकली ड्रिंक अप द फायर इन आवर लाइव्स। ये कभी मत सोचिए भौतिक जीवन में, आध्यात्मिक जीवन में जितना आग लगा हुआ है हम सुलझाएंगे। भगवान कहते तुम क्या सुलझ लोगे मेरे भाई? थोड़ा सा किसी ने व्यक्ति ने कुछ उल्टा सुल्टा बोल दिया, अरे प्रभु जी ये क्या है, अरे माता जी कैसे कर रहे हो आप, ये फूल थोड़ी ऐसे करते हैं, सुबह क्यों नहीं आप? थोड़ा सा डांट दिए तो 2 दिन तक तो दिमाग सटक जाता है, दिमाग घूम ही रहा है, इस व्यक्ति ने ऐसे मुझे क्यों कहा, ऐसे मुझे क्यों कहा, ऐसे मुझे क्यों कहा। फिर क्या हम आग पी लेंगे? कोई चांस ही नहीं है। तो सबसे सरल क्या है? भगवान को हमारे जीवन का आग पीने का दे देने। हमसे नहीं होगा प्रभु, आप पी लीजिए। भगवान कहते मैं करूंगा, लेकिन तुम आंख बंद करो। आंख बंद करो का मतलब ये है, भगवान कहते हैं जो मेरा, यू रिमेम्बर मी, रिमेम्बरेंस, अब्जॉर्प्शन कृष्ण, भगवान की लीला में, भगवान की गुणगान में अगर हम इतने तल्लीन हो जाएंगे तो भगवान कहते हैं फिर तुम्हारे जीवन में जितना भी आएगा मैं पी सकता हूं, मैं सक्षम हूं। लेकिन हम कहेंगे हम जेम्स बॉन्ड हैं, हम खुद प्रैक्टिकली सॉल्व करेंगे सब कुछ। हाँ भगवान तो करेंगे, लेकिन हम तो भी करना है ना, प्रैक्टिकली करना है। भगवान ने ये नहीं कहा कि तुमको कुछ नहीं करना है, सर निठल्ले बैठे रहो, मैं तुम्हारे जीवन को सब दुख कर लूंगा, ये वाली बात नहीं है। अर्जुन को भगवान कहते भाई देखो 2 चीजें, मां मनुस्मर युद्ध च, हे अर्जुन मां मनुस्मर युद्ध च। प्रैक्टिकली तुमको करना है, क्या करना है? युद्ध करना है, युद्ध लड़ना है। भगवान ये नहीं कहा युद्ध मत करो, प्रैक्टिकली क्या करना है? तुम्हारे सामने एक बड़ी समस्या खड़ी है, युद्ध में खड़े हो, युद्ध करो। लेकिन उससे पहले माम अनुस्मर, रुको सुनिए अर्जुन, माम अनुस्मर, लेकिन मेरा स्मरण भी करते रहो मेरे भाई। भगवान का स्मरण भी करना है, फिर युद्ध भी करना है। भगवान ने ये नहीं कहा युद्ध करो फिर स्मरण, भगवान ने पहले मैं स्मरण, तो मेरा स्मरण करते रहोगे और फिर तुम्हारा काम करते रहोगे, तो फिर जितना भी जीवन में तुम आग है भगवान को मैं पी लूंगा। तो even in devotional life we should not be searching for the ideal situation कि अरे काश ऐसा होता था, काश हमको ये सिचुएशन मिलता, काश हम पूना में होते, काश हमारी शादी हो जाती, काश हमें भक्त मिल जाते, काश हमारे पति भक्त होते, काश हमारे पत्नी भक्त होते।
कुछ न कुछ आइडियल सिचुएशन ढूंढ रहे हैं। वो कुछ भी हो, जो भी हो, कभी हमसे पूरा होगा ही नहीं है, because that will never be fulfilled. That is like the fire. उसको ओवरकम करने के एक ही तरह के भगवान में अगर हम अपना चित्त घुमाते हैं, भगवान में अगर हम ऑब्जर्व और फिर भगवान कर लेते हैं। अदरवाइज थियोरेटिकली वी विल ऑलवेज सर्च फॉर द आइडियल प्लेटफॉर्म। ये जब होगा, अगर मेरे 2 बच्चे जब 50 ये 20-25 साल के हो जाएंगे प्रभु, फिर हम फुल टाइम इस्कॉन में वानप्रस्थ ले काम करेंगे। वो कभी नहीं होगा। आपके बच्चे बड़े भी हो जाते हैं, शादी भी हो जाती है, उसके बाद पूछ प्रभु जी अब अभी तो वानप्रस्थ लीजिए, नहीं अब नहीं प्रभु, अब 2-4 साल और दीजिए, अभी लड़के की शादी हुई है, अभी उसका बच्चा होगा तो हमको देखना पड़ेगा, 2-3 साल और दीजिए, उसके बाद में फुल टाइम करेंगे। वो कभी नहीं आएगा। जब आदमी सोचेगा अरे यार मैं स्टूडेंट हूँ, काश मेरा कोई अच्छा कॉलेज की नौकरी हो जाती, अच्छा कंपनी में नौकरी लग जाता, 50-60 हजार कमा लेते, अरे कितना अच्छे भक्ति कर लेते, जानकीर में इस्कॉन सेंटर खड़ा करने के लिए हम पैसे दे देते, हम ये करते, कभी नहीं होगा। वो आग है बस सिर्फ, दैट इज जस्ट द मेंटल डिससैटिस्फैक्शन इज जस्ट अ फायर, दैट्स ऑल। सो इसलिए भगवान के बारे में सुनना निरंतर, कृष्ण बुक एक छोटा सा पास्ट में पढ़ा था, इस तरह का हर एक दिन भगवान के कुछ ना कुछ लीला के बारे में सुनना बहुत आवश्यक है। सुनना, रिमेम्बर कैसे करेंगे भगवान को? अगर स्मरण करना है, भगवान को याद करना है, तो कैसे स्मरण करोगे? अगर हम कहेंगे प्रभु आप कहते चलो विराट कोहली के बारे में स्मरण करिए पूरा दिन, आप पूछेंगे भैया उसके बारे में कुछ तो बताइए, क्या चरित्र है इनका, तो फिर आप स्मरण कर सकते हैं। इसी तरह भगवान के बारे में रिमेम्बर करना है, उनमें अगर चेतना उनमें घुमाना है तो उनके बारे में पढ़ने की आवश्यकता है। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है बहुत एक भक्त के जीवन में? हियरिंग, भगवान के बारे में श्रवण करना जो है अति आवश्यक चीज है। Then that will basically enable us to overcome all the difficulties that we are facing at every level. नहीं तो भक्ति में आगे इतने भाग्य की बात है, 16 माला जप रहे हैं, भगवान कौन है ये भी पता चल गया, ये भी कितना बड़ी बात है। आज कितना कम किसी को पूछिए 4 लोगों को भाई भगवान कौन है, अलग अलग 4 अलग अलग प्रकार के जवाब, लेकिन आप कॉन्फिडेंटली छाती फाड़ के कह सकते हो भाई भगवान श्री कृष्ण है। और कोई बोले क्या प्रूफ है, आप 10 प्रूफ निकाल सकते हो। देखो ब्रह्म संहिता में लिखा है, गीता में लिखा है, भागवत में लिखा है, शंकराचार्य कहते हैं, चैतन्य महाप्रभु, आप प्रूफ के साथ कह सकते हो। ये कितनी भाग्य की बात है कि हम उस परंपरा से जुड़े हुए जहां पे हमको भगवान कौन है ये पता भी चल गया, उनका एड्रेस भी पता चलेगा, अच्छा ये हमारे भगवान गोलोक वैकुंठ में रहते हैं, उनसे हमारे संबंध के बारे में पता चल गया, अच्छा हम उनके संतान हैं। और करना क्या है कि भगवान की भक्ति करनी, वो भी पता चल गया। कितनी भाग्य की बात है। और एक संस्था मिल गई और इतने आचार्य मिल चुके हैं, प्रभुपाद जी महाराज की सब करने के लिए तैयार, सब रेडीमेड थाली बना दी, भैया ये खा लीजिए तैयार, अब थाली रेडी है। कितने भाग्यवान है। इतना आदमी जब भाग्यवान होता है तो नाचता है। घर में भी हॉल रूम से बेडरूम जाते जाते तो नाचते नाचते जाएगा, बेडरूम से बाथरूम में जाएगा तो नाचते नाचते जाएगा, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। लेकिन अभी हम नहीं कर पाते ना, इतना नाच का रहे हैं, दिमाग कहीं और ही है, दिमाग आउट हो चुका है, दिमाग कहीं और है, काम कुछ और, बैठे कुछ और, क्लास सुनने बैठे हैं कहीं और दिमाग जाता है, पढ़ने बैठे हैं दिमाग कहीं और घूम रहा है। If you're really Krishna conscious and we are grateful for what we have, if you are observing also, then we can dance every moment of our life. राधा रानी भगवान के लिए बहुत सेवा कर सकती है, और एक बहुत बड़ी सेवा वो करती है, भगवान को खाना बनाती है, ऐसा व्यंजन परोसती है, और एक व्यंजन जो है रिपीट नहीं करती है। शी इज एन एक्सेलेंट कुक। उससे भी बढ़कर एक चीज करती है राधा रानी, वो भगवान के लिए नाचती है। शी डांसेस फॉर कृष्णा। वो उनके बहुत बड़ी सेवा है कृष्ण के लिए। बिकॉज क्यों? इतना खुश है, वो नाचती रहती है। हम भी इस्कॉन में भक्ति में 16 माला कर रहे हैं, लेकिन मुंह चेहरा उतरा हुआ है, कंफ्यूजन है, पता नहीं क्या है, नाच नहीं रहे हैं। हम सोचते हैं कि कब आएगा वो दिन हम नाचेंगे। आज नाच सकते हैं, आज वही दिन है। कोविड में मर जाने चाहिए हम लोग, हम जिंदा हैं, भगवान की कृपा से जिंदा हैं। तो हम इतने पापी हैं, हमको एक्चुअली इस बीमारी में हमारे में नंबर लगना चाहिए था।
मौसम पतित प्रभु ना पाई बिहार, नरोत्तम दास ठाकुर गा रहे, लेकिन हम बच गए भगवान की वजह से। तो द ग्रेटिट्यूड इन द हार्ट की, अरे यार भगवान बचा ले, आज मरने वाले, तो हमारे कोविड में नाम आ गया था, कोविड 2020 में विजय गोपी केशव को देहांत हो जाएगा, लिखा हुआ था, लिखा, और भगवान ना के नहीं, इसको कैंसिल कर दीजिए, ये व्यक्ति नहीं मरेगा। तो कितना आनंद से नाचेंगे उस भगवान के प्रति कि हाय प्रभु, आपने हमको जिंदा रख दिया, धन्यवाद। वही हमारा सिचुएशन है। तो कंक्लूड, भगवान के बारे में सुनना आवश्यक है, अपनी अपनी स्पिरिचुअल लाइफ देखिए, भगवान के बारे में आर यू लिसनिंग इनफ अबाउट कृष्णा, अबाउट द पास्ट टाइम्स ऑफ कृष्णा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं तो यही जैसे भक्ति में आगे भी, जैसे भौतिक लोग व्यक्ति है और बिना कृष्ण के वो आग में जल रहा है, और भक्ति में आगे हम भी अलग आग में जल रहे हैं, द सेम थिंग, बट यू डोंट हैव टू बी लाइक दैट। भगवान के ऊपर सब कुछ छोड़ के अगर भगवान में हम चित्त लगाएंगे और साधना अच्छी तरह से करेंगे, मंगल आरती में उठेंगे, ब्रह्म मुहूर्त में साधना करेंगे, गीता भागवत रोज पढ़ेंगे अद्भुत तरीके से, फिर भगवान जो हमारे जीवन में जितना भी आंख है वो कह रहे हैं भगवत गीता में, मर डरो मत, अहम तो हम सर्व पापेभ्य मोक्ष मां शुचेगा, डोंट फियर, डरो मत यार, मैं कर दूंगा तुम्हारा काम। निश्चिंत होकर हम रह सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद। किसी को सवाल है, कुछ कमेंट है?